Okay, so we will solve numericals which was given in your gate, previous gate, okay, from hydrograph only. Okay. Okay, keep calculator, pen, pencil, everything along with you. Okay, please try to solve along with me. Okay. See, this is the question. What? The direct runoff hydrograph of a storm obtained from the catchment is triangular in shape. So it is in the DRH. The shape of the DRH is your triangular in shape, okay, and and has a base period of 80 hours. So TB is what? TB or the base period is 80 hours. See, it is in hours, so this is 80 hours. Base is 80 hours, okay. The peak flow rate, Q is nothing but the flow rate only. So the peak flow rate is 30 Qmax or 30 meter cube per second. See, the peak flow rate is 30 Qmax or 30 meter cube per second. Okay, and the catchment area is 46.4 kilometer square. It is given to you, catchment area. So the rainfall excess that has resulted the above hydrograph is, or that has resulted from the above hydrograph. So we have to find rainfall excess or runoff. That means depth of rainfall excess or depth of runoff we have to find. Okay, so these are the options. Now, how we'll get? What is the relationship between this depth of runoff? See, what are the data they have given you? Catchment area, okay, and this data, this is triangular shape. The base of the triangle is what? 80, and height of the triangle is 30. Okay, this is in hour and this is in meter cube per second. So this is given here. Catchment area in kilometer square given. Okay, now they have asked you to find runoff depth. Depth find करो, which जिसका unit क्या है? सेंटीमीटर में. So how will do this problem? How will solve? Anyone? Rainfall excess or depth of runoff and catchment area के बीच का relation क्या था? What was the relationship between this depth and area? क्या था? अभी तो किया थोड़ी देर पहले. कितना सेंटीमीटर का बारिश हो रहा है इतना एरिया में, वो पूछ रहा है तुमको, ठीक है. देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस डेप्थ, कैचमेंट, और एक टर्म आएगा. टेल मी. डेप्थ निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, बोलो तो. डेप्थ निकालने के लिए एरिया तुमको दिया है और एक डाटा लगेगा. क्या डाटा था? एरिया इज नोन, और एक डाटा क्या चाहिए था? Am I audible or not? Yes, ma'am. Audible. Yes, ma'am. बोलो. सपोज तुम्हारा एक एरिया है, ठीक है. सपोज सर्कुलर एक एरिया है, कैचमेंट एरिया सर्कुलर है, ठीक है. यहाँ पे बारिश हो रहा है, ठीक है. अब बारिश होने की वजह से यहाँ पे पानी कलेक्ट हो रहा है, मतलब ड्रेन आउट नहीं हो रहा है, यहाँ पे पूरा बारिश का पानी कलेक्ट हो रहा है, ठीक है. तो सपोज एक डेप्थ तक यहाँ पे बारिश का पानी कलेक्ट हो गया एकदम ये कैचमेंट एरिया में, ठीक है. इतना डेप्थ का बारिश का पानी यहाँ पे आ गया है. ओके, सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली द वॉल्यूम. कितना वॉल्यूम हमको बारिश हो रहा है वो पता लगेगा अगर ये पता है. एंड इफ वी नो द एरिया, कितना एरिया में ये बारिश हो रहा है, so can we easily get this depth? And this depth is nothing but the rainfall excess only. runoff की तो after losses जो भी बचा है उसको तो rainfall excess बोलते हैं, right? So this is your rainfall excess only. So what is this relationship between volume, depth and area? वॉल्यूम, डेप्थ और एरिया का क्या है रिलेशन? वॉल्यूम इज इक्वल टू डेप्थ इनटू एरिया. तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या है? डेप्थ इनटू एरिया, राइट. इतना एरिया में इतना सेंटीमीटर का बारिश हो रहा है, तो वॉल्यूम कितना है? एरिया इनटू दिस डेप्थ विल गिव यू द वॉल्यूम,
ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, डेप्थ निकालने के लिए बोला गया है। तो क्या गिवन है, ए इज गिवन, ओके, ए दिया है। अभी हमको और एक डाटा चाहिए डेप्थ निकालने के लिए, वॉल्यूम चाहिए। तो ये वॉल्यूम के लिए हमको कहाँ से आ जाएगा, फ्रॉम हाइड्रोग्राफ। वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ इज इक्वल्स टू क्या होता है हाइड्रोग्राफ से, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ इज इक्वल्स टू, ये वाला हाइड्रोग्राफ से कैसे निकलेगा, एरिया अंडर द कर्व। यस, एरिया अंडर दिस DRH, मतलब ये जो ब्लू शेडेड एरिया दिख रहा है उसका एरिया हमको चाहिए, ठीक है। सो एरिया अंडर DRH, राइट, एरिया अंडर DRH। तो ये एरिया अंडर DRH क्या क्या होगा बोलो, अब बेस इनटू हाइट। यस, दिस इज ट्रायंगुलर, तो बोल ही दिया है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज व्हाट, हाफ इंटू बेस, तुम्हारा कितना है, बेस कितना है 80 आवर्स है, राइट। तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना है, हाइट है तुम्हारा 30 क्यूमेक्स, राइट, क्यूमेक्स इज व्हाट, मीटर क्यूब पर सेकेंड। कैलकुलेट करो, बोलो कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हमको वॉल्यूम निकल आएगा, एरिया इज अगेन गिवन विच इज 86.4 किलोमीटर स्क्वायर। नाउ दे हैव आस्क्ड यू टू डिराइव डेप्थ इन सेंटीमीटर, करो। फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम निकालो, ये वाला डाटा से वॉल्यूम निकालो। हम भी कर रहे हैं, बोलो। वॉल्यूम इज व्हाट, एरिया अंडर दिस कर्व, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आंसर, एक्सेस रेनफॉल आंसर, हेलो हेलो ম্যাম দাঁড়ান ম্যাম, করছি ম্যাম, কি করলাম বুঝতে পারছি না। पहले वॉल्यूम कितना मीटर क्यूब आ रहा है दिखाओ, बोलो। सी, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या बोले थे हम, इसका एरिया निकाल, ट्राइंगल का एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ व्हाट इज बेस, बेस इज इन आवर एंड योर हाइट इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, सो कन्वर्ट दिस इनटू सेकेंड। सो 80 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर दो और 30 के साथ मल्टीप्लाई करके हाफ से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बोलो। इतना सिंपल भी अगर नहीं कर पाओगे तो क्या बोले हम, कितना मीटर क्यूब आ रहा है बोलो। मैम 43,20,000 मीटर की। हाँ ठीक है, उतना मीटर क्यूब आ रहा है। नाउ वंस यू नो द मीटर क्यूब, ठीक है, एरिया को भी तुम कन्वर्ट कर दो मीटर स्क्वायर में, तो सिंपली डिवाइड कर दो वॉल्यूम से। मैम डिवाइड করে ম্যাম 5 সেন্টিমিটার আসছে। That is this much, okay, this much is volume by catchment area, ठीक है, इतना मीटर क्यूब है, इतना स्क्वायर है, किलोमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो तो आएगा 0.05 मीटर विच इज नथिंग बट द 5 सेंटीमीटर। तो योर ऑप्शन इज ए। বাকিদের কি হচ্ছে বলো তো আমাকে, টেল মি। आंसर आया? पायल दास, प्रतीक, पूर्णिमा, साग्निक, श्यामश्री, सिमोन, फाइव सेंटीमीटर आया आंसर? एनी डाउट? ओके, लेट अस सॉल्व सेकेंड प्रॉब्लम। ओके, देखो सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, एन एवरेज रेनफॉल ऑफ 16 सेंटीमीटर ऑकर ओवर अ कैचमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 आवर्स। ओके, ये रेनफॉल दे दिया है, 16 सेंटीमीटर है,
ठीक है। उसका डी आवर्स कितना है, 12 आवर्स दिया गया है विथ अ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। द यूनिट हाइड्रोग्राफ मतलब कि डेप्थ है 1 सेंटीमीटर, ड्यूरेशन 6 आवर्स का ही है, ठीक है। यूनिट हाइड्रोग्राफ मतलब 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ द कैचमेंट rises linearly from 0 to 30 क्यूमेक्स in 6 hours। मतलब तुमको हाइड्रोग्राफ दे दिया है, ठीक है, यूनिट हाइड्रोग्राफ का डायग्राम दे दिया है, ठीक है। तो बोला है क्या, it will increase linearly from 0 to 30 cumex in 6 hours, first 6 hours, and then falls linearly from 30 to 0 cumex in next 12 hours। ओके, फाई इंडेक्स दिया है कितना, 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। तो फाई इंडेक्स दिया है, दिस इज प्रेसिपिटेशन। अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड रेनफॉल एक्सेस और रन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा। एंड बेस फ्लो भी दिया है कितना, 5 क्यूमेक्स। सो एज पर दिस कंडीशन यूनिट हाइड्रोग्राफ का तुमको डायग्राम दे दिया है, कैसे करना है देखो। फर्स्ट बोला है कितना, ये 6 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ है और बोला है इट विल इंक्रीज फ्रॉम 0 to 30, देखो फ्रॉम 0 to 30 इन फर्स्ट 6 आवर्स, ठीक है। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ टिल 6 आवर, इट विल रीच 0 से लेकर 30 राइज हो रहा है, ठीक है। देन अगेन फॉल्स फ्रॉम 30 to 0 इन नेक्स्ट 12 आवर्स, मतलब आफ्टर दिस 6 आवर और 12 आवर्स ऐड कर दो, आफ्टर 12 आवर्स इट विल रीच 0। मतलब यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम 0 इट विल बी 18 आवर्स, ओके। तो 6 + 12 इज 18। तो टोटल कितना है यहाँ पे देखो, 0 से ये 18 आवर्स में ये वाला 0 में पहुंच जाएगा। सो ये भी एक ट्रायंगुलर शेप दे दिया है, ओके। एंड दिस कर्व इज व्हाट, दिस इज नॉट DRH, दिस इज यूनिट हाइड्रोग्राफ कर्व, ओके। 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ कर्व दे दिया है, ओके। सो मैक्सिमम कितना है यूनिट हाइड्रोग्राफ का, 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड बोला गया है, ओके। तो व्हाट दे हैव आस्क्ड, फाइंड द पीक डिस्चार्ज ऑफ द रिजल्टिंग डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ठीक है। मतलब ये यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है, तुमको बोल रहा है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का पीक निकालो। यूनिट हाइड्रोग्राफ का क्या है पीक, डिस्चार्ज कितना है 30 है, अब बोला है DRH 6 आवर DRH का पीक निकालो, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू फॉर दैट केस, ये क्या है, ये वाला किस चीज का है, ये वाला डायग्राम, दिस इज फॉर 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ओके। तो एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ वंस वी नो द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का डिस्चार्ज पीक डिस्चार्ज, वी कैन इजीली कैलकुलेट द फ्लड हाइड्रोग्राफ का पीक डिस्चार्ज। सिंपली वी हैव टू ऐड whatever option is, whichever option is correct, we have to simply add with that base speed flow, okay। base flow को बस ऐड करके कोई भी वैल्यू, अगर तुम्हारा आंसर 150 है सो 150 + 5 155 होगा आंसर, ठीक है। और फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दिस आंसर, देन ओनली वी कैन फाइंड दिस वन, ओके। और दूसरा अगेन कैचमेंट का एरिया बट इन हेक्टर्स दिया है, कैचमेंट का एरिया इन हेक्टर्स, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन ये है, लेकिन हमको क्या डाटा दिया है, देखो हमको डाटा ये वाला दिया है, ठीक है। लेकिन हमको दिया है 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का डाटा हमको दिया है, ओके। बट हमको रिजल्टिंग डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, मतलब रिजल्टिंग क्या है, ये वाला जो पूछा गया है, विच इज 12 आवर्स हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो 12 आवर्स DRH हमको निकालना पड़ेगा फ्रॉम दिस 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। कैसे निकालोगे बोलो तो, how we will convert this 6 hour hydrograph to 12 hour hydrograph। 6 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है तो हमको पहले 12 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना है, ठीक है। तो सिंपली उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका जो भी रेनफॉल का डेप्थ होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट दैट पर्टिकुलर DRH, ओके। DRH हमको निकल आएगा। लेकिन फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ टू 12 आवर्स DRH, इसमें कन्वर्ट कर देना है। तो हाउ विल डू दिस, पहले तो वो थर्ड क्वेश्चन के लिए पहले ये सब निकालेंगे, रेनफॉल एक्सेस कितना है ये सब, ठीक है। सो योर रेनफॉल इज 16, फाई इंडेक्स लॉस कितना होगा, टोटल लॉस फाई इंडेक्स इंटू टोटल ड्यूरेशन कितना है, 12 आवर्स का ड्यूरेशन है तो 0.5 × 12 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अगेन 16 - 6 विल गिव यू 10 सेंटीमीटर इज द रन ऑफ, ओके। मतलब ये वाला है रेनफॉल एक्सेस, जो रिजल्टिंग हाइड्रोग्राफ का रेनफॉल एक्सेस कितना है 10 सेंटीमीटर है, ओके। नाउ दिस इज द गिवन डाटा, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू
दिस इज 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू 12 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। कैसे करेंगे बोलो? विच मेथड कैन वी यूज हियर? एस कर्व करोगे ना कि सुपर इम्पोजिशन से ही हो जाएगा? सुपर इम्पोजिशन मेथड इज इनफ और वी हैव टू यूज एस कर्व मेथड? इसमें क्या है? d is 6, t is 12, so n will be what? t for superimposition your m should be an integer, right? तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा? t by d, okay? That means what? We have to convert 6 hour to 12 hours. So here in multiply factor कितना है? 6 into 2 12 आ रहा है, right? So 2 is what? 2 is your integer. So in this case can we use superimposition? Hello? Yes, ma'am. Yes, right? तो क्या करना चाहिए सुपर इम्पोजिशन में? हम क्या बोले थे, कैसे कर सकते हैं सुपर इम्पोजिशन में? तो सुपर इम्पोजिशन के लिए फर्स्ट वी हैव टू डू फाइंड ऑल द ऑर्डिनेट्स, ओके? बट सी हियर यहाँ पे कितना ऑर्डिनेट्स है हमको मिल रहा है? एक जीरो में कितना है? 0 0 है, ठीक है? यहाँ पे कितना है तुम्हारा? 6 30 है, और एक यहाँ पे मिल रहा है क्या? 18, और 18 पर 0 है। सो 18 0 इज दिस ऑर्डिनेट, ये वाला है तुम्हारा 6 30 एंड ये वाला है 0 0। बट वी हैव टू फाइंड वन मोर ऑर्डिनेट, ओके? जो कि क्या है? देखो ये 6 आवर्स है, ठीक है? फिर 6 आवर्स, देन 6 आवर्स, राइट? सो एट 12 आवर्स व्हाट विल बी द ऑर्डिनेट ऑफ दिस क्यू, वो हमको चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपली लीनियर मेथड फॉलो करके, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो 12 आवर्स में तुम्हारा आ जाएगा 15, ठीक है? या वी कैन सिंपली इंटरपोलेट, मतलब कि हमको डाटा क्या क्या है? 0 में 0 था, 6 में 30 था, 18 में 0 था, राइट? अब हमको बीच का एक डाटा चाहिए 12 का, ठीक है? क्योंकि ये 6 आवर्स इंटरवल में हमको चाहिए था ये वाला डाटा, क्योंकि 6 आवर से 12 आवर में चाहिए, राइट? सो 6 इंटरवल के बीच का गैप का हमको चाहिए, लेकिन यहाँ पे बीच में 12 का नहीं था, so we can simply find this value by simply from the graph or interpolation. 6 में 30 है, 18 में 0 है, तो 12 में कितना होगा? 15 आएगा, ओके? so we have substitute this values, मतलब यहाँ पे हम लोग बीच में घुसा दिए ये वाला डाटा। क्वेश्चन में सिर्फ 1 2 3 डाटा था, हम लोगों ने ये वाला डिराइव कर लिया, okay? Now this is your 6 hour unit ordinate, okay? Now we have to find 12 hour unit, 12 hours का ordinates चाहिए। Then for that what we have to do, ये है तुम्हारा यूनिट हाइड्रोग्राफ, मतलब 1 सेंटीमीटर का है, 6 आवर्स के लिए है, सो दिस इज द यूनिट हाइड्रोग्राफ, ओके? 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है? अब सुपर इम्पोजिशन में क्या करते थे हम लोग? लैग कर देते, इसको फिर से लैग कर देते, राइट? यहाँ पे निकाल के आ जाते, लैग्ड बाय 6 आवर्स ম্যাম इटसेल्फ। নিচের পোরশনটা ড্রয়িংটা দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ ম্যাম। ओके वेट, स्क्रीन विजिबल कर नाउ? यस मैम। ओके, सो लेट अस सी, यहाँ पे थे, सी नाउ इज इट विजिबल? यस मैम। ओके, सी यूनिट हाइड्रोग्राफ ये वाला क्या था? 1 सेंटीमीटर 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ ये वाला है, ओके? इसको छोटा सा वर्जन, ओके? तो दिस वन है। अब सुपर इम्पोजिशन में व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक दिस एंड अगेन लैग्ड बाय अनदर 6 आवर, राइट? मतलब यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है? तो यहाँ से देखो लैग्ड बाय 6 आवर, यहाँ से अब सेम यही ऑर्डिनेट यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ठीक है? वही देखो इट इज ट्रांसफर्ड टू 6 आवर, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 यहाँ पे आ गया, 30 यहाँ पे आ गया, ऐसे, ओके? तो सुपर इम्पोजिशन मतलब क्या है? हमको सिंपली ऐड कर देना है। तो हमको डाटा किस चीज का चाहिए? 12 आवर्स का। तो कितना बार ऐड करना है? 6 आवर पता था, 12 आवर में करना है तो 2 बार ऐड करना है, तो ये दोनों का सुपर इम्पोजिशन हमको करना है, ओके? तो एक वैल्यू आएगा, सो दिस इज योर 12 hours, but this is 1 centimeter, this is also 1 centimeter, so this will be 2 centimeter, okay? So 1 plus 1 2 centimeter, 6 plus 6 12, so 12 hour 2 centimeter DRH। जब भी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा that is known as DRH, okay? एंड यहाँ पे 1 सेंटीमीटर नहीं लिख के हम लोग यूनिट हाइड्रोग्राफ पे लिख सकते हैं। सो
दिस इज द DRH। ओके, अब हमको क्या चाहिए, लेकिन हम लोग का इफेक्टिव रेनफॉल इज नॉट 2 सेंटीमीटर। इन द क्वेश्चन योर इफेक्टिव रेनफॉल इज 10 सेंटीमीटर, राइट? तो हम लोग को डायरेक्ट 10 सेंटीमीटर यहाँ से नहीं आएगा। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट दिस अगेन इनटू यूनिट हाइड्रोग्राफ। 12 आवर का ही चाहिए डाटा, लेकिन यूनिट हाइड्रोग्राफ पहले निकालना है, फिर अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 10 सेंटीमीटर। ओके, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव टू कन्वर्ट दिस 12 आवर 2 सेंटीमीटर DRH टू 12 आवर unit hydrograph. Then what we have to do, what will be the value for this one, this will be 0, this will be 12 hour unit 15, ठीक है, ये 22. ऐसे ऐसे करके जाना है। ओके, सीधे 15 22.5 7.5 2 से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। ओके, नाउ दिस इज योर 2 hour unit hydrograph, but see how we have converted the 6 hour unit hydrograph to 12 hour unit hydrograph. Conversion is complete. But क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि रिजल्टेंट हाइड्रोग्राफ का पीक कितना है। रिजल्टेंट मतलब क्वेश्चन में जो डाटा दिया है उसका जो हाइड्रोग्राफ होगा उसका पीक निकालो, ठीक है, उसका पीक निकालो, उसका DRH का पीक निकालो। तो we have to again convert this 12 hour unit hydrograph to 12 hour and 10 centimeter DRH। कुछ नहीं दे, ये वाला है तुम्हारा क्या, दिस इज 12 hour 2 centimeter DRH। ये हमको निकल आया पिछले वाले उससे, ठीक है। उससे हमको क्या निकालना था, यूनिट हाइड्रोग्राफ। यूनिट हाइड्रोग्राफ भी निकाल दिया। सिंपली वी हैव डिवाइडेड दोज ऑर्डिनेट बाय 2 सेंटीमीटर, सो दिस ब्लैक इज द यूनिट ऑर्डिनेट। ओके, नाउ यूजिंग दिस ब्लैक कलर, मतलब ये जो ऑर्डिनेट है, यूजिंग दिस ऑर्डिनेट वी हैव टू फाइंड 10 सेंटीमीटर का DRH। सो क्या करेंगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, ये बड़ा हो जाएगा, देखो। सो वी हैव सिंपली मल्टीप्लाई दिस विद 10। सो दीज आर द ऑर्डिनेट्स फॉर योर 12 hour 10 सेंटीमीटर DRH, और उसका ही तुमको DRH का ही मैक्सिमम डिस्चार्ज निकालने के लिए बोला गया है। सो दिस इज द मैक्सिमम डिस्चार्ज, क्लियर। एंड ये फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। एंड सेकेंड आंसर क्या था, सेकेंड आंसर वॉज योर व्हाट इज द पीक डिस्चार्ज ऑफ द रिजल्टिंग फ्लड हाइड्रोग्राफ, ठीक है। ये तो DRH का मैक्सिमम है, अब तुम फ्लड हाइड्रोग्राफ का मैक्सिमम पूछा गया है। तो सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू add this with base flow, ठीक है। DRH से हमको फ्लड हाइड्रोग्राफ निकालना है, तो सिंपली हम लोग DRH का जो भी मैक्सिमम है उसके साथ बेस फ्लो ऐड कर देंगे, which is 5 क्यूमेक्स। So 230 क्यूमेक्स is the correct answer। क्लियर यहाँ तक? फर्स्ट दो क्लियर हो चुका, राइट। फर्स्ट तुम्हारा हो गया, ये फर्स्ट का आंसर ये है, तो सेकेंड का आंसर ये है, क्लियर। So seeing the questions, reading the questions, read the questions carefully, उसी से पता चलेगा कि हमको कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ फाइंड द अनदर थर्ड जो क्वेश्चन था, कैचमेंट एरिया निकालो। ये वाला तो कितना बार कर चुके हैं हम लोग, निकालो कैचमेंट एरिया। ओके, फाइंड द कैचमेंट एरिया। पहले ये देखो इसका कितना रेनफॉल निकला है, रेनफॉल, सॉरी, सी दिस मच रेनफॉल एक्सेस है 10 सेंटीमीटर, ये लिख कर रख लो, ठीक है। रेनफॉल एक्सेस, और वी कैन से दिस इज द डेप्थ ऑफ रन ऑफ इज 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ फाइंड DRH, फाइंड कैचमेंट एरिया, निकालो। ये डाटा गिवन है, कैचमेंट एरिया निकालो। फॉर गेटिंग कैचमेंट एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला, वॉल्यूम बाय डेप्थ, ठीक है। डेप्थ तो हमको पता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ इज द एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ, ठीक है। वेदर यू कैन यूज एनी हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ यूज कर सकते हो, कुछ भी हाइड्रोग्राफ यूज कर सकते हो। ओके, सो हम लोग ये वाला हाइड्रोग्राफ यूज करेंगे, यूनिट हाइड्रोग्राफ जो दिया गया है। ये क्वेश्चन होगा, डिटरमाइन द कैचमेंट एरिया फॉर गिवन यूनिट हाइड्रोग्राफ। ओके, क्वेश्चन में वहां पे दिया नहीं है यूनिट हाइड्रोग्राफ का। फाइंड आउट, अगर तुमको DRH का कैचमेंट एरिया निकालने के लिए बोलते तो वी हैव टू यूज देन दिस कोऑर्डिनेट्स, ये सब ऑर्डिनेट्स यूज करना था, ठीक है। एंड इन दिस केस ये तो तुम्हारा ट्रायंगल नहीं है, तो इन दिस केस वी हैव टू यूज ट्रेपेजॉइडल रूल, लेकिन हम लोग यूनिट हाइड्रोग्राफ से निकालेंगे, ठीक है।
तो यूनिट हाइड्रोग्राफ का ये एरिया इज नथिंग बट द ट्राइंगल, राइट। ट्राइंगल का एक एरिया है। बोलो कितना आएगा, वॉल्यूम कितना आएगा, व्हाट इज द वॉल्यूम? Volume is nothing but the area under the hydrograph, right? Now what is the area? This is triangular area. So triangular area का area क्या है? Formula half into base into height. So half into base है तुम्हारा 18 hour. Again इसको convert कर दो मीटर सेकेंड में, ठीक है? And height is 30 cumex. So half into 18 into 3600 into 30. That will give you the volume in meter cube में आएगा, right? In meter cube. So half into base వచ్చే इतना इतना into 30. So 97200 आ रहा है वॉल्यूम। আচ্ছা রেসপন্স করছে না কেন, ও কেটে গেছে নাকি? Yes ma'am, 9720000। হ্যাঁ 97200, right? So this is the volume, okay? Now हम लोग यूनिट हाइड्रोग्राफ यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डेप्थ will be 1 centimeter. ओ हाँ हम तब भूल बोल दे, ओके 10 सेंटीमीटर दैट इज फॉर योर DRH, जो रिजल्टेंट DRH है उसका 10 सेंटीमीटर, बट वी आर यूजिंग आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ओके। सो यूनिट हाइड्रोग्राफ का डेप्थ विल बी 1 सेंटीमीटर, ओके, विच इज 0.01. सो एरिया विल बी व्हाट, वॉल्यूम बाय डेप्थ, ठीक है। सो वॉल्यूम बाय डेप्थ करके कितना मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर आएगा। नाउ बट ये क्वेश्चन, बट योर आंसर इज इन हेक्टर, हेक्टर में निकालो तो कितना आएगा? हेक्टर में कितना? 9720। Yes, your 1 hectare is equals to 10 to the power 4 meter square, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू है 10 टू पावर माइनस हेक्टर, तो इसको इनटू कर देना है 10 टू पावर माइनस हेक्टर से, वी आर गेटिंग 9720 हेक्टर। क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर। ये तो इजी है, ये तो बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। सिंपली हमको डेप्थ चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं, वॉल्यूम इज नथिंग बट द एरिया अंडर DRH, एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोग्राफ, एंड ऐसे ट्रायंगुलर भी हो सकता है, ट्रैपेजोइडल भी हो सकता है, तो सिंपल फॉर्मूला से आ जाएगा। लेकिन इफ इट इज नॉन लीनियर, जैसे ऐसे पैराबोलिक हुआ, ऐसे नॉन लीनियर है, देन वी हैव टू यूज ट्रैपेजोइडल रूल, जो कि वो बोले थे हम लोग, डेल्टा T इनटू फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस सेकंड लास्ट ऑर्डिनेट बाय 2 प्लस रिमेनिंग ऑर्डर ऑर्डिनेट्स, ओके। नाउ ये वाला लास्ट है, शायद लास्ट ही होगा, ठीक है। लेट अस सॉल्व दिस। एन एवरेज रेनफॉल फॉर अ 3-hour duration storm is 2.7 centimeter, okay. Average rainfall for 3 hours duration storm is this much centimeter. Again the loss rate is 0.3 centimeter per hour, ठीक है। तो फिर से वही रेनफॉल एक्सेस या डेप्थ ऑफ रेनफॉल निकालना है। The flood hydrograph has a base flow of 20 cumex and produces a peak flow of this much, ठीक है। पीक फ्लो दे दिया है तुम्हारा फ्लड हाइड्रोग्राफ, देखो यहाँ पे फ्लड हाइड्रोग्राफ डाल दिया है, तो फ्लड हाइड्रोग्राफ का बेस फ्लो है 20 क्यूमेक्स और पीक फ्लो ये 210 क्यूमेक्स निकालता है, ठीक है। सो द पीक ऑफ 3 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ इज निकालना है। क्या दिया है देखो, गिवन डाटा एवरेज रेनफॉल ये है, ड्यूरेशन 3 आवर, जो हमको कैलकुलेट करना है 3 आवर्स दैट इज 3, लॉस रेट 0.3, क्यूबी कितना है, बेस फ्लो 20, पीक इज दिस मच, ओके। तो डायग्राम अगर प्लॉट करोगे तो कैसा आएगा, बेस फ्लो दिया है देखो कितना 20 क्यूमेक्स, ओके। जहां पे बेस फ्लो ऐड है, मतलब जो भी ग्राफ हमको मिलेगा दैट इज फ्लड हाइड्रोग्राफ या स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ, ओके, फाइनल जो होता है, ठीक है। अब बोला गया है एक एरिया है, ये है फ्लड हाइड्रोग्राफ, ठीक है। दिस इज द फ्लड। अच्छा ये वाला हमको कैलकुलेट करना है कितना है, पहले ये वाला कैलकुलेट करो तो ये 1.8 कैसे आ रहा है, हाउ वी आर गेटिंग दिस 1.8, वही तो 0.3 गुण 3 द लॉस का 2.7 माइनस 1.8, यस दिस इज प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल माइनस लॉस करना है, टोटल लॉस कितना है, 1 घंटे में 0.3 है तो 3 घंटे में 0.9 हो जाएगा, सो 2.7 माइनस 0.9, मतलब प्रेसिपिटेशन ऊपर से कितना बारिश हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, माइनस कर दो, रन ऑफ आ जाएगा, ठीक है। सो ये वाला है 1.8, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसका पीक डिस्चार्ज 210 मीटर क्यूब दिया गया है, ठीक है। अब हमको यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना है, देखो 3 आवर गिवन है
अब 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना है। ओके, तो इससे तो तुम्हारा वो हो जाएगा 1.8। ओके, अब ये कैसे करोगे? ये तो सिंपल है, बोलो, इसमें कोई वो नहीं चाहिए, समेशन भी नहीं है, कुछ नहीं है। फ्लड हाइड्रोग्राफ गिवन, ठीक है, कितना 3 आवर्स का फ्लड हाइड्रोग्राफ गिवन है, पूछा गया है तुम्हारा क्या बोलते हैं 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक निकालो, मतलब 3 आवर 1.8 सेंटीमीटर फ्लड हाइड्रोग्राफ का पीक हमको पता है, ठीक है। सो 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक निकालो बोल रहा है। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस फ्लड हाइड्रोग्राफ टू यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो इससे पहले क्या करेंगे, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ इज नथिंग बट द डीआरएच ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो फ्लड हाइड्रोग्राफ से हमको पहले डीआरएच निकालना है, तो डीआरएच निकालेंगे कैसे? फ्लड हाइड्रोग्राफ से डीआरएच कैसे निकलेगा? बेस फ्लो माइनस कर दो। यस, इट वी हैव टू रिमूव दिस वन। ओके, ओ सॉरी, यहाँ पे। सो दिस इज योर क्वेश्चन, ये 1.8 सेंटीमीटर 3 आवर्स का ये सब डाटा है, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव द बेस फ्लो, मतलब इसको उड़ा दो, उड़ा के अब इसको नीचे शिफ्ट कर दो। ओके, सो ऐसा नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट 3 आवर, देखो ये थोड़ा ऊपर था क्यूपी, अब इसका क्यूपी नीचे आ गया, ठीक है। तो कितना नीचे आएगा? कोई भी पॉइंट से तुमको ये वाला निकाल दिया है, तो क्यूपी कितना होगा? पहले था तुम्हारा क्यूपी 210 फॉर दिस केस, अब इन दिस केस क्यूपी कितना होगा? 190 190 210 माइनस 20, राइट। ये तो 20 ऑर्डिनेट तो पूरा उड़ा दिए हम लोग, राइट। सो 190 मीटर क्यूब, क्लियर है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए? यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक चाहिए, राइट। तो दिस इज 3 आवर 1.8 सेंटीमीटर डीआरएच। अब हमको 3 आवर 1 सेंटीमीटर डीआरएच निकालना है, तो क्या करेंगे? डिवाइड, भाग कर दो। यस, डिवाइड बाय 1.8, ठीक है। तो हमको ये वाला मिला था 3 आवर यूनिट हाइड्रो सॉरी ये डीआरएच है, ओके, डीआरएच है, ओके, सॉरी, जिसका पीक ये था, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर का हमको चाहिए, तो क्या हो जाएगा? माइनस करके, सॉरी डिवीजन कर देंगे, ये वाला का जो भी ऑर्डिनेट है उससे हम डिवाइड करके करें, ये वाला ऑर्डिनेट निकाला है, ठीक है। दिस इज 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ओके। अब इसके साथ हमको इसका मैक्सिमम पीक निकालना है, तो क्या कर देंगे? सिंपली डिवाइड, सब ऑर्डिनेट को डिवाइड कर रहे तो ऑब्वियसली क्यूपी को भी डिवाइड ही करेंगे, राइट। ये जो भी है इसको भी डिवाइड ही कर देंगे, डिवाइड बाय 1.8। सो योर आंसर इज 105.5 व्हिच इज ऑप्शन बी। क्लियर? यस मैम। ये सब तो इजी है, राइट। अच्छा, कत टाइम হলো? আরেকটা প্রবলেম, एक प्रॉब्लम है वो करके छोड़ देंगे हम, ठीक है। सो तुम्हारा ये आंसर भी आ गया, थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ओके। ओ, कैचमेंट एरिया बोला था ना, पूछा था कैचमेंट एरिया भी? नहीं, कैचमेंट एरिया तो नहीं बोला था, जो भी है कैचमेंट एरिया यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है, वही है फॉन्डा, ठीक है। नाउ लेट अस सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। सी, फॉर अ कैचमेंट द एस कर्व ड्यू टू द रेनफॉल ऑफ इंटेंसिटी 1 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है, इज गिवन बाय दिस वन। मतलब ये किस चीज का एस कर्व है? ये है तुम्हारा 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का एस कर्व है। ये वाला जो भी एस कर्व जो भी हमको प्लॉट करेगा, जिसका फॉर्मूला ये इक्वेशन ये दिया है, इफ वी plot this, if we use this equation and find the qp value with respect to t, we will get one curve, okay, which is s curve, ठीक है। और ये s curve कहाँ से हम लोगों ने डिराइव किया है? फ्रॉम 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ से, ठीक है, where t is in hour, q is in meter cube per second. is this clear? whatever जो भी है कर्व है ना, कर्व का तो एक इक्वेशन से भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन का क्या हो जाएगा? mx y equals to mx plus c, राइट। वैसे इसका भी एस कर्व का भी एक इक्वेशन है विच इज गिवन बाय दिस वन, ठीक है। तो इट इज रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, वही बोल रहा है इधर, ठीक है। अब दूसरा क्या है? यूजिंग दिस डाटा व्हाट इज द एरिया ऑफ द कैचमेंट अगेन, ठीक है, वही एरिया ऑफ द कैचमेंट निकालना है। अब यहाँ पे एस कर्व और एरिया ऑफ द कैचमेंट का एक रिलेशन था, इक्वेशन था, दैट इज क्या बोलते हैं? मैक्सिमम डिस्चार्ज इज इक्वल टू a into 1/d। शायद ये पता था क्वेश्चन, मतलब तुम लोग को पता होगा, सॉरी। जैसे Q इक्विलिब्रियम हम लोग का जो था, Q इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट द मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ योर S कर्व, ओके। दैट इक्वल्स टू क्या था? एरिया ऑफ कैचमेंट इनटू 1/d, ओके। दिस इज 1/d इज द इंटेंसिटी, ठीक है। ये वाला दिया है तुमको 1 सेंटीमीटर पर आवर, सो 1/d इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, पर आवर। एरिया भी तुमको
निकालने के लिए बोला गया है. सो फॉर दैट वी मस्ट गेट दिस वैल्यू QE, मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना होगा वो चाहिए हमको. ठीक है. एंड व्हाट विल बी द ऑर्डिनेट ऑफ 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर दिस कैचमेंट एट T इक्वल्स टू 3 आवर्स. मतलब पहले 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का सब ऑर्डिनेट निकालो, उसमें से जो भी 0 1 2 3 होगा ना, तो 3 आवर्स का रेस्पेक्टिव ऑर्डिनेट क्या है वो यहाँ पे पुट करने के लिए बोला गया है. ओके. फर्स्ट फॉर दिस वी हैव टू फाइंड 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ यूजिंग दिस एस कर्व. ठीक है. ये एस कर्व किस चीज का है? 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का है. अब हमको 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना है फ्रॉम दिस एस कर्व. ओके. तो ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन दिया गया है. दिस इज द इक्वेशन जिससे ये प्लॉट करके ये डायग्राम आएगा. ओके. नाउ रिलेशन ये है T1 में Q1 आएगा, T2 में ये आ जाएगा. एंड दिस इज द मैक्सिमम जो डिस्चार्ज का वैल्यू जो बोले थे, QE इज A into 1/D where A is the catchment area and D 1/D is the intensity which is given as 1 centimeter per hour. ठीक है. अच्छा, कोई एनी आइडिया कैसे कर सकते हैं ये वाला सॉल्व हम लोग? ये गिवन है. दिस इज द गिवन डाटा. ओके. सो ये बारिश कितना हो रहा है? बारिश ये हम लोग बोले थे एस कर्व किस चीज के लिए है? फॉर इन्फिनाइट पीरियड के लिए है. राइट. इन्फिनाइट पीरियड तुम्हारा अगर वो होता रहेगा तब जाके ये एस कर्व आएगा. ठीक है. सो टी अगर इंफिनिटी हम करते हैं, सो व्हाट एवर क्यू वी विल गेट दैट एज द मैक्सिमम डिस्चार्ज. हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इन्फिनाइट में तुम्हारा मैक्सिमम डिस्चार्ज वैल्यू आएगा. ठीक है. अब हम लोग यहाँ पे टी का इन्फिनाइट वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते. सो व्हाट वी हैव टू टेक टी जितना हो सके लार्ज वैल्यू लो. ठीक है. से फॉर एग्जांपल 20 आवर्स 50 आवर्स, मतलब इतना घंटा से बारिश होता जा रहा है, ऐसा कोई भी एक हम लोग आवर्स पकड़ेंगे. ठीक है. तो कोई भी तुम वैल्यू पकड़ो, देखो 20 पकड़ोगे, 50 पकड़ोगे या 100 का वैल्यू यहाँ पे टी बिठाओगे, योर क्यू विल बी ऑलवेज अप्रोक्सीमेटली मतलब 10 to 1. ठीक है. क्यू का वैल्यू इट विल बी नियर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 होता रहेगा. ठीक है. सो हम लोग फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ टी वी कैन कंक्लूड दैट वी विल गेट क्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 सिंस इसका क्या बोले थे, यूनिट इज मीटर क्यूब पर सेकंड. सो 1 मीटर क्यूब पर सेकंड होता रहता है. ठीक है. तो ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम डिस्चार्ज यही है इन यूजिंग दिस इक्वेशन. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे इसको कांस्टेंट पकड़ के, या दिस इज नोन टू अस नाउ कि तुम्हारा इंफिनिटी के लिए क्यू का वैल्यू 1 आ जाएगा यूजिंग दिस इक्वेशन. ठीक है. तो हम लोग क्यू को 1 पकड़ेंगे. ठीक है. अब उस हिसाब से हम लोग का क्या है, हम लोग का एरिया निकालना है. सो योर QE इज व्हाट? QE इज योर फॉर T टू बी इंफिनिटी और फॉर लार्ज वैल्यू योर Q विल बी योर QE ओनली. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे अब Q कितना आ रहा है? फॉर T टू बी लार्ज Q आ रहा है 1. ठीक है. तो यहाँ पे 1 बिठा दो. 1/D equals to 1 centimeter per hour. 1 वैल्यू बिठा दो. Now we can easily calculate A. So 1 meter cube per second, A into A वैल्यू है 1 centimeter per hour. ठीक है. So इसको सेंटीमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दो बिकॉज इट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है. तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 100 आएगा. आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 3600 से. सो A विल बी, A कितना आ रहा है? A कितना आ रहा है बोलो? A कितना आ रहा है? A का वैल्यू किलोमीटर स्क्वायर में चाहिए. कौन सा ऑप्शन होगा बोलो? What is the A value in kilometer square? 3.6. कितना आ रहा है? कत किलोमीटर स्क्वायर? 3.6 0.36 तो ना कि 3 होगा. ठीक है. यहाँ पे 0.36 है. हाँ. सो 0.36 किलोमीटर स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर. ओके. क्लियर? यस मैम. ম্যাম বলছিলাম কিউ এর যে আরেকটা ফর্মুলা ছিল কি 2.77, ওই ফর্মুলা কি স্যার ম্যাম? In that formula you have to find the volume and all that thing. Okay. Catchment area के लिए वहाँ पे volume by depth ये सब चाहिए. You can use that all. Okay. Okay मैम. अब
व्हाट वी हैव टू डू, सेकेंड केस के लिए क्या है, सेकेंड प्रॉब्लम के लिए फाइंड ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फ्रॉम द एस कर्व ऑफ 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। एस कर्व ऑफ 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ हमको दिया है, मतलब दिया नहीं है, क्वेश्चन दे हैव गिवन अस, ओके, यूजिंग दैट वी हैव टू फाइंड 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, से फॉर एग्जांपल जो बोले थे हम लोग Q1 Q2 करके, ठीक है, 1 में t = 1 में Q1 है, 2 में Q2, ऐसा ऐसा करके जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज द गिवन इक्वेशन, हम लोग प्लॉट नहीं करेंगे। ओके, अब ये है तुम्हारा एस कर्व ऑर्डिनेट, क्या करना है हमको, एस कर्व क्या है और हमको यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना है। तो पहले यूनिट हाइड्रोग्राफ से एस कर्व निकालने के टाइम में वी हैव टू ऐड एस कर्व एडिशन, एंड फ्रॉम एस कर्व से अब यूनिट हाइड्रोग्राफ में करने के लिए हम लोग को माइनस करना है, एस कर्व का ऑर्डिनेट को माइनस करना है, बट वी हैव टू लैग इट बाय टी आवर्स, राइट। तो यहाँ पे टी आवर्स कितना है, टी आवर्स कितना है, डी आवर कितना है, पहले बोलो, डी गिवन इज डी, which we have to find is t। तो हमको 2 आवर्स फाइंड करना है, so this is t आवर and given क्या है 1 आवर, d is 1। ठीक है, तो हमको what we have to do, हम लोग ने बोला था ना इंफिनिटी टाइम्स का ये एक है। ठीक है, अब दूसरा इंफिनिटी टाइम्स को हम लोग शिफ्ट करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, राइट। तो शिफ्ट कितना करना है, शिफ्ट कितना करना था, एस ए माइनस एस बी था ना, t निकालने के लिए एस ए माइनस एस बी हम लोग किए थे। तो यहाँ पे t इज हाउ मच, t इज 2, वहां पे एस ए माइनस एस बी को कितना लैग किए थे, बाय t आवर्स, राइट, वी हैव लैग्ड आवर। अच्छा टकी कोरे छो তোমরা না ভুলে গেছো, ये वाला देखो, ये जो बोले थे हम, सी इन दिस केस क्या किए थे हम, ये वाला एक एस कर्व ए है, ये वाला एस कर्व बी है। ठीक है, इसको इसी को डाटा को उठा के हम लोगों ने लैग किया कितना, बाय टी आवर्स। ओके, सो वी हैव टू, ये वाला एस ए का ऑर्डिनेट है, इसको उठा के हम लोग शिफ्ट कर दिए यहाँ पे बाय टी आवर्स। सो इन दिस केस योर टी वाज 4, 4 से स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना से स्टार्ट होगा बोलो, ये वाला ऑर्डिनेट को उठा के इसमें लग देना है, राइट। तो कितना के बाद स्टार्ट होगा, लैग्ड बाय टी आवर्स, यहाँ पे टी कितना है 2, सो वी हैव टू लैग दिस ऑर्डिनेट बाय दिस, वी हैव टू टेक दिस ऑर्डिनेट्स एंड लैग्ड बाय 2 आवर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ से स्टार्ट किए, 0 यहाँ 0 से स्टार्ट था फॉर दिस कर्व, फॉर नेक्स्ट कर्व सेम ऑर्डिनेट है, बट वी विल लैग इट बाय 2 आवर्स। तो 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ, Q1 Q2। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड DRH। अब DRH ऑफ T आवर्स, DRH मतलब 2 आवर, DRH कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस कर देंगे। ओके, सो दिस माइनस दिस 0, Q1 Q2 ये वाला आ रहा है। ठीक है, एंड इसका रेनफॉल एक्सेस का फॉर्मूला क्या था, इससे जो भी तुम्हारा DRH आएगा उसका रेनफॉल एक्सेस वैल्यू कितना होगा, T/D, मतलब तुम्हारा कितना था 2 आवर्स बाय 1 आवर, सो इट इज बेसिकली 2 सेंटीमीटर DRH। ओके, सो ये वाला जो भी ऑर्डिनेट है दिस इज 2 आवर्स 2 सेंटीमीटर DRH, लेकिन हमको चाहिए क्या, 2 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ, मतलब 2 आवर 1 सेंटीमीटर DRH हमको चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, सो वी आर डिवाइडिंग इट बाय दी 2। देखो 0/2 इज 0, Q1/2, Q2/2, Q3/2 ये वाला है। ओके, क्लियर। अब तुमको पूछा गया है एट टाइम t = 3 में पीक यूनिट हाइड्रोग्राफ कितना होगा, 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का Q का Q मतलब ये जो ऑर्डिनेट्स का वैल्यू कितना है, देखो 3 आवर्स में ये वाला है ऑर्डिनेट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में देखो दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड व्हाट विल बी द ऑर्डिनेट ऑफ 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ एट t = 3। तो ये वाला ऑर्डिनेट है तुम्हारा 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट है। सो नाउ एट t = 3 में दिस इज द ऑर्डिनेट। सो ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, Q3 - Q1/2। ठीक है, तो हमको Q3 चाहिए, Q1 चाहिए। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन यूज करेंगे, जैसे कि ये तुम्हारा ये इक्वेशन है, देखो Q = ये है। ठीक है, तो Q1 और Q3 का वैल्यू चाहिए। सो एट t = 3 आवर ऑर्डिनेट्स कितना है तुम्हारा, Q3 - Q1/2। सो Q3 का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा,
सो यहाँ पे हो जाएगा t का वैल्यू 3 पुट कर दो, यू विल गेट 3, ठीक है, 1 + 1 + 3 बाई e⁻³ और यहाँ पे q1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपली 1 1 पुट कर दो, t के जगह पर 1 1 पुट कर दो, ठीक है। So q1 is this much, q3 is this much. So at t equals to 3 hours, ordinates of this will be simply this minus this by 2, which is your option C. Clear? So in this way we have to solve. देखो S कर्व भी हो गया, यूनिट हाइड्रोग्राफ भी हो गया, समेशन तुम्हारा सुपरपोजिशन भी हो गया, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम UH to DRH, then DRH to फ्लड हाइड्रोग्राफ, या मतलब वाइस वर्सा, ये भी हो गया। So ऐसा टाइप का प्रॉब्लम्स you will face in your semester or GATE. Okay, so please practice all these things, these questions once again, and if you face problem then please let me know. Okay. Okay, then thank you. Thank you, ma'am. Okay.